In the last class, we discussed about the definition of subgroup and some examples: subgroup, trivial subgroup, proper subgroup, and so now we have to just say that uh, some of the basic properties of this we can just say that. So first theorem, this means when H is a subgroup, then H must be identity and inverse for each element. So I just say that this one is very important thing. We need not verify all the properties defining a group to show that a subset closed under binary operation is a subgroup. In fact, closed under binary operation and existence of a inverse are sufficient. But first we need to deal with the technical problem. So what the technical problem means, I just say that. I just so now when we say that H is a subgroup, uh, when we say that H is a subgroup of a G, then H must have an identity uh, and inverse for each of its element. Because I just said that in the last lecture also, I just tell you, when we say that this G uh, is a group and H is a subset of this set. If H is a subset of this set is like this is there. So means because identity element, we're talking about the identity element of a G is a unique. We already prove it, and this thing is a unique is there. So this means if H is a subset of this set is there, an identity element of a whole G is a unique. There means one identity element which is the same as a identity element of a H and E are the same is there. So now also second thing is the inverse of each element is a unique. If inverse of each element is unique means whatever element is there, we have to find that the inverse of such a element is also belongs to the same set H is there. So we have all this element inverse of a particular this element should not lie outside of a this. This must be lie inside in a H also. So these are the two important properties for this. We can just say that when we show that the subgroup is H is any subset of a group G is a subgroup of these. Now the first theorem, we say that let G be a group and H is a subgroup of a G. Then EH is equal to EG. That's what I say that कि यहाँ जो EH हम जो चूज करेंगे, मैंने ये कहा ना कि ये this is E. So EG जो है वो EH और EG जो होगा this is the same element. So this is EH and this is the same as a E. EG is the also there. So we just say that. So means we can prove that the identity element of a H and the identity element of uh, this both are the identity element of a H and identity element of a G are the same. And also if H is the element of a also if H is the element of a H with inverse H dash inverse belongs to H, then H dash inverse is the same as a H inverse is belongs to the G is there. Also is the element of a G is there. So we have to prove this result. Now proof is not very difficult. So let EH be the, we just prove that EH is the identity of H. If EH is the identity of H means हम क्या कह सकते हैं कि EH अगर EH जो है वो H का आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो EH कंपोजिशन EH हमेशा किसके बराबर आएगा? EH के बराबर आएगा. So this is again true. So we can say that identity element of this thing. So but EH is also the element of a G because H क्या है? H is a subset of a G is there. So H is a subset of a G is there if EH
is the element of a H, then is containing H is containing in a G. So this is trivially. EH is also the element of a G there. So N is a solution of x square is equal to x. So x square is equal to x is the solution. So if EG belongs to the G is any solution. So if EG is any solution of a this, तो means EG x square का मतलब x है. So EG is equal to EG, और EG is the element of a this, so EG is the identity element of a G, and EH is also the element of a G. So this means EG in composition, EH is there. So now if EG composition EG is equal to EG EH जो है क्योंकि G का एलिमेंट है तो इसकी वजह से क्या होगा, EG भी किसका होगा ये EH into EG by the identity of a G. So ये क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिटी क्या कहता है, ए कंपोजिशन E किसके बराबर होता है, A के बराबर होता है. दिस इज आल्सो द E composition A also there. So using this property we can say that EG is written as a EG into EH. EH is also the element of some element G is there. Now by the left cancellation property, this and this term is cancel out. So we have a ultimately EG EG is equal to EH is there. So अल्टीमेटली हमने क्या प्रूव कर दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट हम जो लेके चले थे ये सेट, ये कोई G था और ये कोई हमारे पास का सेट H है. तो इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो AH और EG आर द सेम इज देयर. इट मींस दिस इज द एलिमेंट इनसाइड H is there, identity element is the same element for the EG also. So identity element for the whole the set is the unique. This is true. Now if H is the element of H, और if H एलिमेंट ऑफ H का, और H क्या है हमारा कोई सब ग्रुप है लेके चल रहे हैं हम, अगर H सब ग्रुप है तो इसके हर एलिमेंट का इनवर्स होगा. इसका मतलब ये इंप्लाइज करेगा इसका कोई इनवर्स होगा. हमने कोई H डैश ले लिया, दिस इज द इनवर्स ऑफ ए दिस एंड दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू द H is there. Now we use this because this is the inverse. अगर ये H में है और H का कंटेन करता है, ये कंटेन कर रहा है G में कंटेन कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास कि H डैश इनवर्स जो है इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए G इज देयर. तो ये H डैश इनवर्स जो है G का भी एलिमेंट होगा. और अगर ये G का एलिमेंट है और H कहाँ पर है, H इज द एलिमेंट ऑफ H है, ये इंप्लाई H कहाँ कंटेन कर रहा है, G में कर रहा है, इसका मतलब ये इंप्लाइज करेगा कि H इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ ए G इज देयर. तो अब अगर H G का है और G ग्रुप है तो हम क्या कह सकते हैं, H कंपोजिशन H इनवर्स, दिस इज H डैश इनवर्स जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा, क्योंकि ये कोई इनवर्स है इसका. और ये किसके बराबर होगा, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू H कंपोजिशन H इनवर्स. ओके, सो ये यहाँ से क्योंकि H है तो इसके H का कोई इनवर्स भी होगा, इस H का इनवर्स होगा, इसका मतलब वो भी G में होगा. तो इन दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, वो भी आइडेंटिटी ऑफ G के बराबर होगा. और H डैश G जो कोई वहाँ पर है और H इंटू H डैश ये G का एलिमेंट है और ये इसका इनवर्स लेंगे, G में है तो H का कोई इनवर्स है तो ये भी इसमें होगा. तो इसका मतलब ये भी कंपोजिशन G के बराबर होगी. अब आप देखिए फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम लेफ्ट कैंसिलेशन लो अप्लाई करेंगे, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा. तो क्या होगा, H इनवर्स इज द सेम एज ए H डैश इनवर्स इज देयर. तो हमने क्या करा कि अगर हमने कोई H डैश सेट G H के अंदर लिया है तो इसका इनवर्स भी इसी सेट के अंदर है, इसका सेट इस H से बाहर नहीं है उस सेट. ओके, तो इनवर्स इज आल्सो लाइज इनसाइड द सेट इज देयर, इनसाइड ऑफ दिस. So we can say that simply this means these two is very important properties when we checking about the subgroup. means subgroup means हमने क्या कहेंगे कि अगर कोई H नॉन एम्प्टी सबसेट है G का तो आइडेंटिटी एलिमेंट H जो है वो H के अंदर कंटेन करनी चाहिए और H के हर एलिमेंट का इनवर्स भी कहाँ होना चाहिए, H के अंदर ही कंटेन करना चाहिए. दैट इज अ प्रूफ, इज वेरी सिंपल. सो इज दिस क्लियर, ये प्रूफ समझ में आ गया? यस सर. कोई प्रॉब्लम? ओके, सो नाउ अब
problems next condition is this, how we if every time we have a subset is there, is this possible? We have to check all the properties of a group is a, when we say show that is a subgroup, we check all the properties, all the four properties of the group satisfy this one. So now we so we have to find certain things. So we just say that it's saying that this is a theorem which say that both the conditions are equivalent. How we say that H, a subset H of a group G is a subgroup if and only if these conditions are satisfied. There is a three conditions are there. One condition is this, H is a non-empty. So first important condition is we have to just say that H should be a non-empty set is there. और दूसरी क्या कहता है वो कि अगर H1 H2 दो H के एलिमेंट हैं तो वो H1 H2 भी H का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि अंडर बाइनरी कंपोजिशन वो क्लोज होना चाहिए, और अगर H है तो H इनवर्स भी होना चाहिए. तो हमने कहा कि अगर हमारे पास हम सिर्फ ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर लें किसी भी सबसेट के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि H जो होगा वो सब ग्रुप हो जाएगा जिसका, और अगर ये कोई तीन कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं तो H सब ग्रुप होगा, और अगर H सब ग्रुप है G का तो वो H ये तीनों कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा. नाउ दिस इज द कंडीशन फॉर criteria for a subgroup. Now we have to prove this is very trivial is this. अब देखिए proof is very trivial is this sense. पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि H is a subgroup of a G. अगर H सबग्रुप ऑफ ए G है, इसका मतलब क्या होगा कि H क्लोज होगा, H क्लोज होगा क्योंकि H सबग्रुप है. अगर सबग्रुप की डेफिनेशन क्या कहती है कि H इज अ सबग्रुप ऑफ ए G if H itself is a group under the same binary operation. So पहली कंडीशन ग्रुप होने के लिए क्या है, क्लोज होनी चाहिए. अगर H सबग्रुप है तो इसका मतलब H itself is a group है. if H is itself is a group है तो H क्लोज होगा. H क्लोज का मतलब क्या होगा, कोई H1 H2 दो H के एलिमेंट हैं तो हमेशा इंप्लाइज करेगा कि H1 H2 भी H में होंगे. दूसरी चीज क्या कहेगा, वो कहता है कि ये जो सेट होगा आइडेंटिटी हमने भी प्रूफ किया EH और EG इज द सेम, तो EG EH जो होगा वो भी H के अंदर होगा क्योंकि ये ग्रुप है तो इसके अंदर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, और जैसे ही EH इसके अंदर एलिमेंट होगा तो ये क्या होगा, H शुड बी नॉन एम्प्टी. कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट तो मौजूद होगा ग्रुप होने के लिए. हमने कहा कि अगर कोई ग्रुप होता है उसके अंदर दो ट्रिवियल ग्रुप्स होते हैं, दो ट्रिवियल सब ग्रुप्स होते हैं, एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट और एक G itself is there. So if there is only identity element is there, if EH is belong to this means clearly H is a non-empty set is there. Now second last thing is क्या कि अगर H कोई H का एलिमेंट है तो क्योंकि ये ग्रुप है तो इसके हर एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद होगा, तो H इनवर्स भी G का मेंबर होगा. यानी कि ये तीनों कंडीशंस हमारी जो है ये सेटिस्फाई कर गया अगर H जो है सब ग्रुप है. तो वन वे इज वेरी ट्रिवियल, वी कैन से दैट इफ H is a subgroup of a G then H itself is a group. If H itself is a group, then H satisfy all the properties of a group. If all the properties in a group, then EH identity element must be in H. Identity element in H means H is a non-empty. पहली कंडीशन हो गई. दूसरी क्या होगी, H क्लोज भी होगा. क्लोज की वजह से सेकंड कंडीशन प्रूव कर दी इसकी, और इनवर्स भी होगा इसकी वजह से ही होगा. या एनीबडी से समथिंग, क्या किसी को कुछ कहना है? नहीं. ओके, सो वन वे प्रूफ हो गया कि अगर हमारे पास जो है H जो है वो सब ग्रुप है तो ये इंप्लाइज करता है 1 2 3 ऑल थ्री दिस कंडीशन, ये दिस तीन कंडीशन. अब हमें क्या करना है कि तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो H जो होगा वो सब ग्रुप होगा. अगेन वेरी ट्रिवियल थिंग इज देयर. हम कह सकते हैं कि अगेन क्योंकि अब हम कह रहे हैं कि पहली कंडीशन क्या है हमारे पास, पहली कंडीशन ये कहती है कि H1 और H2 इज द एलिमेंट ऑफ H है, तो दिस इंप्लाइज दैट H1 कंपोजिशन H2 भी H का एलिमेंट होगा, यानी कि H क्लोज हो गया तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. H क्या है, नॉन एम्प्टी है, तो हमारे जो है हमने जो डेफिनेशन की थी H शुड बी नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी है हमारा H, इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स शुड बी देयर, और H is a subset of a G satisfy condition, so H is a non-empty. There is at least one H belongs to this. So by the condition, this is
Z is not, Z is 3, this is missing. Okay, by the अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी x h का एलिमेंट है तो तीसरी कंडीशन क्या कहती है, तीसरी कंडीशन ये कहती है कि x इनवर्स जो होगा वो भी h का एलिमेंट होगा, तो h इनवर्स आल्सो द एलिमेंट ऑफ, तो h inverse किसका एलिमेंट होगा, h inverse is also the element of h is there. So now अब x जो है हमारे पास किसका x का एलिमेंट है और x इनवर्स भी किसका h का एलिमेंट है, तो बाय प्रॉपर्टी वन क्या कहती है कि अगर h1 h2 h के हैं तो h1 h2 भी h में होगा, तो ये क्या कंप्लोज करेगा, x इनवर्स भी h में होगा, और ये आपको पता है कि x इनवर्स किसके बराबर होता है, दिस इज e. ओके, सो x इनवर्स किसके बराबर होता है, e. So E can be written as a x composition x inverse, और x inverse किसका एलिमेंट है, h का एलिमेंट है, इसका मतलब E is also belongs to the h is there. So identity element is also belongs to the h is there. Now so we have a identity element is this, h contain the E and close and contain the inverse. तो अब आपके पास तीनों प्रॉपर्टी हो गई, बाय प्रॉपर्टी वन क्या हो गया, ये क्लोज हो गया, बाय प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, प्रॉपर्टी थर्ड के हिसाब से हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और विद द हेल्प ऑफ अ प्रॉपर्टी थर्ड एंड प्रॉपर्टी वन वी कैन से दैट कि ये इनवर्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, यानी कि ऑल थ्री कंडीशंस ऑफ ए सब ग्रुप्स आर सेटिस्फाइड. सो ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई हमारे पास H सबसेट है, कोई H इज ए सबसेट ऑफ ए G, अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो वो सब ग्रुप होगा, और अगर सब ग्रुप है तो वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा. This is the proof of the theorem. I think it's very easy, trivial proof. You understand all. If you have a, you can ask any question from here. Any question up to this theorem? No theorem? No question? Okay, now. No, sir. Yes? No question? Yes, some questions? No, sir. No, okay. So now we move to another theorem. Another theorem is saying that there is some equivalent conditions. There is a misprint. This is 3, is not Z. Okay. So another क्या कहता है कि G is let G be a group and non-empty set. This is not equal to 5. Non-empty H contains subset of a G. Then the following conditions are equivalent. अब हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास तीन कंडीशंस हैं जो आपस में इक्विवेलेंट है. वो क्या कहता है कि अगर H सब ग्रुप है G का, तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट अगर कोई X और Y कोई दो एलिमेंट H के हैं तो X Y भी H में होगा और X इनवर्स भी होगा H में, यानी कि सिर्फ दो कंडीशंस की बात कर रहे हैं. अब देखिए ऊपर वाली कंडीशंस को अगर आप देखें तो हमने क्या प्रूव किया था कि अगर H नॉन एम्प्टी है और H सब ग्रुप, H अगर सब ग्रुप है G का तो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, और ये B जो है, B कंडीशंस जो है ये कंप्लीटली ऑल टू कंडीशंस ऑफ दिस सेकंड एंड थर्ड. सेकंड में क्या था, क्लोजनेस था, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू द H, और थर्ड में क्या था, इनवर्स था, एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू द H. दिस इज द सेम एज द थर्ड वन इज देयर. नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट इज दिस. तो हमने क्या करा है कि अब आप देखिए हमने जो पहली थ्योरम जो थी, पहली थ्योरम में हमने ये कहा था कि अगर x और y दो एलिमेंट H के हैं तो ये इंप्लाइज करता है x y भी H में होगा, और दूसरा क्या कहा था हमने कि x अगर H में है तो ये इंप्लाइज करेगा कि x इनवर्स भी H में होगा अगर सब ग्रुप है, और H नॉन एम्प्टी तो था ही था. ये तीन कंडीशंस थी. अब आप देखिए अगर H सब ग्रुप है तो ये सेकंड कंडीशन जो है, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली नॉन एम्प्टी लेके चल रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो यहाँ इंक्लूड हो गई उस सेट की, तो अब नॉन एम्प्टी तो चेक करने की जरूरत नहीं है. अब हमें क्या कहना है कि अगर ये A implies B तो A implies B तो सिंपली सी बाय द अबव थ्योरम हो गया. अबव थ्योरम क्या कहती है कि अगर H कोई सब ग्रुप है तो उससे क्या कहता है कि अगर X और Y दो H के एलिमेंट है तो X Y भी H में होगा, और थर्ड कंडीशन क्या कहती है अगर X है तो X इनवर्स भी H में होगा. तो दिस इज प्रूफ इज वेरी ट्रिवियल. दिस पार्ट A implies B क्या होगा, इफ H is a subgroup of a G, the binary operation in G restricts to 1 on H. So XY
belongs to H implies that XY belongs to H, and by theorem, above theorem, X inverse belongs to H implies, so this is proving the B part. Okay, so B part से जो है हमारे ये जो above theorem जो थी, उस theorem से हम क्या कह सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो होगा हमारे पास बाय द दिस theorem, okay, by the theorem we can say that this is this number is, I think, is something is number is not correct. This is 1.6.2 is there just before this theorem. Okay, so now we can say that is this thing. Now second condition is क्या कहता है कि B implies C. This is very trivial. अब B और implies C का क्या मतलब होगा कि अगर x y आपका किसके पास है, H में है, और आप क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है, x इनवर्स B H में है, तो ये कह रहे हैं आप. तो अब हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास y कोई H का एलिमेंट है तो इंप्लाइज दैट y इनवर्स भी H में होगा, क्योंकि सेकंड कंडीशन से कहता है वो कि अगर x है तो x इनवर्स भी H में होगा, अगर y है तो y इनवर्स भी H में होगा. अब हमारे पास अगर x और y H में है तो ये हमेशा इंप्लाइज करेंगे कि x y इनवर्स भी H में होगा, क्योंकि हमने ऊपर कहा कि अगर y है तो y इनवर्स भी होगा बाय द प्रॉपर्टी हेयर. तो अगर x और y दो H में है तो इसका मतलब x y H में है तो y इनवर्स भी होगा, x y इनवर्स भी H में होगा, और ये इंप्लाइज करेगा बाय द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस B पार्ट कि x y belongs to H. So this means x y inverse is also the element of a H is there. So x y inverse भी क्या होगा, is also belongs to the H होगा. तो ये इसका मतलब क्या होगा, is satisfy the this condition is there. So C, so B implies C where B, if y belongs to this y inverse H, तो x y H में है तो x और y inverse भी H में होगा, वो implies कर जाएगा x y y inverse is proving the C part of a this theorem is there. Now we have to just last part we just say that C implies A, because हमें क्या करना है, all three are equivalent. तो all three are equivalent proof करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A B C. So A implies B, if B implies C, and then if we show that C implies A, then all three are equivalent. So that means we can just say that so we just say that is like this. Now so अब हम क्या करेंगे, C implies H. So since we have a given H is a non-empty set, so if it is non-empty set is there, then X belongs to H. So X belongs to H, and by the C part क्या है हमारे पास, वो कहता है कि अगर X y belongs to H है तो C क्या कहता है कि X y इनवर्स भी H में होगा. तो हम क्या लेके चल रहे हैं, y की जगह भी x ले लें, x belongs to the H implies that क्या होगा, x इनवर्स belongs to the H, और x इनवर्स किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी बिलोंग, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू द H. अब हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास सिर्फ ये है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है, और यहाँ से ही क्या करना है हमें कि ये इंप्लाइज करेगी कि H क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ G होना चाहिए. अब सब ग्रुप दिखाने के लिए हमें सिर्फ तीन कंडीशंस दिखानी है. अगर आपको याद हो, इससे पहली वाली थ्योरम क्या थी कि हमें क्या दिखाना है कि H तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, अगर x y H में है तो x y भी H में होने चाहिए, और अगर x बिलोंग्स टू द H है तो x इनवर्स भी H में होना चाहिए. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू जब प्रूविंग दिस ऑल थ्री कंडीशंस. तो यहाँ से क्या आया कि E बिलोंग्स टू द H. अगर अब हमारे पास E H में आ गया, हमने शो कर दिया, जब E H में आ गया हमारे पास, अब हमारे पास E और X दोनों किसके एलिमेंट है, H के एलिमेंट है, और ये इंप्लाइज किसके करेगा, अगेन प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी प्रॉपर्टी C क्या कहती है, X Y अगर H के एलिमेंट है तो X Y इनवर्स भी H का एलिमेंट होगा. तो वी कैन राइट E X इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ H, और अगर E X द एलिमेंट है, E X इनवर्स किसके साथ करते हैं तो क्या होगा, X इनवर्स. सो X इनवर्स इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ H इज देयर. तो आपके पास क्या लेके चले थे, अगर X H का एलिमेंट है तो हमने क्या शो कर दिया
X inverse uh, uh, is also the element of uh, is uh, is also the element of uh, H is there. Okay, so now I am just running my battery out, so I just stop here. Huh? If you have a question, you can just ask me right now, because I forget my adapter in my home, and my computer is no battery right now. It's message every time blinking. So if you have a questions, please